thanks to Press Information Bureau, ROB, and FOB, Ministry of Information Broadcasting, Government of India, Ranchi, Jharkhand, for inviting me to participate in this auspicious webinar. At the outset, I would like to congratulate you for organizing this webinar where many can participate and benefit from this for themselves. The month of October is observed as the month of cleanliness by the Government of India that she has declared. We must thank the government for giving us this opportunity. As the theme of this webinar is Swachhta, cleanliness, I would like to draw your attention to go back to the Indian society and look at different communities residing all over the country, leaving aside the faith and religion. If you look at all the communities, we do find the important place of cleanliness in their community life, be it a society, be it a village, be it our own families. सफाई का हमारे जीवन में, परिवारों में, गांवों में और बृहद तौर पर अपने देश में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है. Mahatma Gandhi ji said, sanitation is more important than independence. And further, he added, so long as you do not take the broom and the bucket in your hands, you cannot make your towns and cities clean. Cleanliness and sanitation were integral parts of the Gandhian way of life. Gandhiji further added that unless we rid ourselves of our dirty habits and have improved latrines, Swaraj can have no value for us. He further continued his struggle for cleanliness, sanitation and effective management of our wastes in South Africa, and then in India while fighting for Swaraj in India. My dear friends, the habits which a person imbibes at a very young age goes a long way with the person and becomes a part of his personality. He further stressed the fact that cleanliness promotes good health among people. Keeping this idea of cleanliness and sanitation in his mind, Mahatma Gandhi again said, I will not let anyone walk through my mind with their dirty feet. He must have meant to look at our individual life from a spiritual point of view. Socrates said that human beings are social beings. मानव एक सामाजिक प्राणी है. सुकरात ने कहा, all of you will agree with Socrates, a great philosopher. My dear friends, I have my personal view on human beings. We also are spiritual beings. हम सभी आध्यात्मिक प्राणी हैं. We also have our spiritual self. If we look at ourselves, our society spiritually, we find that we need to be spiritually clean from within. हमारी आत्मा है, हमारे हृदय है, जिसे हमें साफ रखना है, और यह हमारा आध्यात्मिक कर्तव्य है. हम सबों को शुद्ध सोचना है, शुद्ध विचार करना है. We need to think purely. We need to have purity of mind. If we think purely, if we have thoughts, they are pure,
we will speak pure words, it will automatically come out from us. And if we have spoken pure words, that will influence the society. If our words are pure, we will act purely, and our pure act will have harmony in the society, and the outcome will be harmony. We will experience joys, peace, love, and serenity. In the nation, there will be neighborhood, there will be brotherhood, and there will be sisterhood. We will not experience non-violence, because that is coming out from all of us internally. Our thoughts are pure, we are thinking purely, and the same pure thoughts are coming out in the form of our words. They are leading us to act. Our actions are pure, and our pure actions will have a positive outcome. We will have a better society in the nation. Therefore, when we look at ourselves spiritually, we need to be pure beings. We need to be spiritually very pure. We need to be Shuddha beings. Therefore, today I would invite all of us, all of you, to be a good citizen, a good human beings. And in order to give a better shape to the nation, all of us need to take initiative that we become good citizens. At the end, once again, I thank all of you for inviting me to be part of this auspicious webinar. Thank you very much. Thank you very much, sir. Thank you very much. आपने भी सर ब्रीफली बहुत इम्पोर्टेंट बातें रखी हम लोगों के सामने, और इसमें जो फोकस था आपका वो ये था कि हमारे विचार प्योर हो तो हमारा एक्शन भी प्योर होगा, और हमारे एक्शन प्योर होंगे तो फिर अपने हम आसपास के वातावरण को भी ऑटोमेटिकली साफ रखेंगे। और बहुत अच्छा सर आपने ये बात कही। और ये जो है वो इंसान जो है वो सामाजिक प्राणी भी है और आध्यात्मिक प्राणी भी है, तो ये जो सिनर्जी है दोनों का वो क्लीननेस को बढ़ाता है। बहुत ही शानदार बात है ये। आमतौर पर इस पॉइंट को लोग मिस कर जाते हैं सर, तो बहुत अच्छा लगा लोगों को सुनने में कि ये दोनों चीजों को आपने जोड़ा, और सोल से सोसाइटी तक, सोल से पूरे माहौल तक किस तरह से हम क्लीननेस लाएंगे। ये आमतौर पर ऐसी सोच नहीं, मतलब ऐसी बातें जो है वो आर्टिकल्स में या दूसरी चीजों में वो सिर्फ फिजिकल बातें करते हैं कि यहाँ सफाई करना है, वहां सफाई करना है, इतना कचरा जमा करना है, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे होगी वो आपने उसका गाइडेंस, उसका गाइड किया सर आपने। वी आर वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस गाइडेंस एंड फॉर दिस ओपनिंग रिमार्क्स। और सर साथ साथ हम लोग आज हम लोग अपने आप को बहुत ही मतलब एक तरह से ऑनर्ड फील कर रहे हैं सर कि स्टूडेंट कॉलेज के पार्टिसिपेट कर, स्टूडेंट स्कूल पार्टिसिपेट कर रहा है, साथ साथ वहाँ के फादर वाइस प्रिंसिपल सर भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, संतोष सर भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इनफैक्ट हम लोग बहुत ऑनर्ड फील कर रहे हैं आज कि हम लोग साथ आप लोग जैसे लोग हैं इस वेबिनार में, और आगे भी करेंगे, आगे भी इन्वाइट करेंगे। कई टॉपिक हम लोग करते रहते हैं, पूरे साल हमारा ये चलता रहता है अलग अलग टॉपिक्स पे। और एक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहेंगे, एक दो इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहेंगे कि वेबिनार जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं सब लोगों को ई सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और ई सर्टिफिकेट के लिए एक फॉर्म भरना होगा जिसका लिंक हम लोग गूगल मीट के चैट बॉक्स में हम लोगों ने डाल दिया है। तो उस फॉर्म को भरेंगे तो सारे पार्टिसिपेंट्स को ई सर्टिफिकेट मिलेगा। दूसरी चीज ये है कि ये वेबिनार लाइव चल रहा है यूट्यूब पर भी, जो लोग यहाँ देख रहे हैं देख सकते हैं, देखें, जो लोग नहीं देख पा रहे हैं वो लोग यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, और यूट्यूब पर रहेगा वो बाद में भी लोग देख उसका फायदा उठा सकते हैं। तीसरी चीज ये है कि क्विज भी रखा गया है, और क्विज है, और क्विज को भी जो लोग चाहे वो उसका लिंक जो है वो चैट बॉक्स में दे दिया गया है, इसके गूगल मीट के चैट बॉक्स में है, उसका लिंक दे दिया गया है। तो क्विज करना है, और उसमें जो है वो थोड़ा अपना अवेयरनेस टेस्ट करना है कि हमारा स्वच्छता के बारे में, ईस्ट के मैनेजमेंट के बारे में क्या हमारा अवेयरनेस है, उसके लिए एक क्विज भी है। तो तीन चीजें बाई चल रही हैं,
ई सर्टिफिकेट मिलेगा जो लोग भरेंगे, इसको फॉर्म भरेंगे। यूट्यूब पर भी लाइव चल रहा है। और तीसरी चीज है कि वो क्या नाम है, लोग और हम चलते हैं। और मैंने बताया था कि हमारे साथ बहुत ऑनर्ड है और दूर दराज लोग लगता है तो गोवा आता है, गोवा हमारे गोवा तो हम वेबिनार में आते हैं तो जैसी जगह करते हैं जैसे कि हमारे घर पर गोवा के और गोवा वाले भी झारखंड लोग होंगे। तो ये बड़ा अच्छा फीलिंग होता है कि जब गोवा के किसी भी स्पीकर को हम लोग इन्वाइट करते हैं। और मेरी तो कोशिश होती है कि मेरे वेबिनार में गोवा के लोग आते रहे हैं लगातार। यूनिवर्सिटी ऑफ गोवा के प्रोफेसर भी आए हैं, टीचर भी आए हैं। फिर वहाँ आप यहाँ से इससे भी पहले भी लोग आ चुके हैं और भी कॉलेजेस से लोग आ चुके हैं पहले, आगे भी आएंगे। तो अब हम लोग चलते हैं मैडम की तरफ। जैसा मैंने बताया था कि मैडम का जो बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। लरिसा मैडम का नाम है, लरिसा थोड़ा सा हम लोग के लिए पोर्शन डिफिकल्ट हो जाता है। लरिसा रॉड्रिग्स आपका नाम है और आप वहाँ ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ाती है, असिस्टेंट प्रोफेसर है गोवा कॉलेज ऑफ होम साइंस। और पिछले वेबिनार में मैंने कहा था कि ये गोवा एक कॉलेज है जो डेडिकेटेड है होम साइंस के लिए। ये भी अपने आप में एक यूनिक है। यहाँ हम लोगों ने यहाँ तो रांची झारखंड वगैरह में या दिल्ली तक भी मैंने नहीं पाया कि कोई कॉलेज डेडिकेटेड होम साइंस सब्जेक्ट जरूर होता है, बट एक कॉलेज ही होम साइंस के लिए थोड़ा सा मुझे यूनिक लगा। और मैडम से मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा कि साथ साथ जो अपनी बात तो रखेंगे आप ही और साथ साथ लोगों ने जो कहा था for introducing me and being so generous with your comments. I will speak mostly in English, लेकिन जहाँ हिंदी possible होगा वो मैं हिंदी में भी बात कर सकती हूँ। Okay, मैं मेरा स्क्रीन प्रेजेंट करती हूँ। I am audible to everyone, right? Yes. You are audible. Thank you. स्क्रीन सबको दिखाई दे रहा है? जी मैडम। Yes. Okay. Goa Green and to go green. Okay, so thank you very much, the Press Information Bureau, for having me for this session. My name is Larissa Rodrigues and I work at the College of Home Science here in Goa, in the capital city of Panji. Just to give you a small introduction to our state, Goa is famous for its beaches, of course you know, and as a holiday destination for many tourists. As a state, Goa is one of the smallest states in India, and we are consisted of two main districts, which is North Goa and South Goa. The North Goa borders with Maharashtra, South Goa borders with Karnataka. As you see, we are a very small figure on the map. Yes, nevertheless, we are a very beautiful state, and we hope that we will remain beautiful in the years to come. Just to tell you a little bit about our state, like I said, it's one of the small states of India. Yeah, we are almost around 4,000 square kilometers in area, out of which 33% of Goa, if you look at the green sections, are highly forested areas. Yeah, so these are the Western Ghats, which is bordering with the state of Karnataka. And the Western Ghats are the hot spot for a lot of species of animals and birds and other kinds of things that are endemic to India, and some of them are also nearing extinction. So this is one of the biodiversity hotspots. Okay, so all the green area that you can see here covers around 33% of Goa's state's area. Okay, Goa has a hot climate, so we are hot in most of the months of the year. The only cold months that we have are usually November, December, and January. We have very good rainfall. In fact, इस साल में तो बारिश काफी ज्यादा हुआ है. And we are a largely agricultural state, so you'll see a lot of the yellow area, which is all farming land. Okay, so all the rice which is grown, different varieties of rice, some varieties of rice which are very special to Goa, the state varieties are grown here. So we are a largely agricultural state.
And our population is a very small population of around 16 to 17 lakh people. However, a lot of our population in the months all throughout the year happens from the domestic and international tourists that we have. So even though we have a small population of 16 lakh people, we have almost half of that quantity of domestic tourists visiting us every year and around 3 lakh people foreign tourists every year. Of course, now because of the COVID pandemic, this number is slightly less. However, I would also like to point out that because of tourism being the main industry in Goa, we generate also a lot of waste that is related to tourism. So we are generating more than 600 to 700 tons of waste per day. Okay, almost half of which is related to hotels and the tourism business. Now, Goa faces similar environmental problems as the other states of India. So, जो भी उधर होता है वो गोवा में भी होता है. ऐसा नहीं कि हमारे बीचेस जो है जो साफ सुथरे हैं और उनमें कोई पोल्यूशन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है. We are a state which also has a lot of problems like air pollution, water pollution, a lot of garbage and wastage problems, land destruction, mining. अगर आपने न्यूज में सुना होगा तो कॉन्स्टेंटली लोग जो हैं वो फाइट करते हैं कि माइनिंग ना हो, झाड़ों को मत काटो. ये वेस्टर्न घाट्स जो है उनका पूरा एरिया दे वर गोइंग टू कट टू मेक द टैनमर लाइंस फॉर द रेलवेज. तो सब ऑपोजिशन करके ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अभी वो मना किया है करने के लिए, लेकिन काफी कुछ डैमेज डिस्ट्रक्शन हो भी गया है इधर. सो लॉट ऑफ सैंड माइनिंग, डिफॉरेस्टेशन, ई वेस्ट, एवरी possible problem is a part of our state as well. Lekin on the positive side, we also have a lot of concerned citizens. We also have a lot of environmental activists, famous environmental activists, Father Bismarck, Claude Alvarez, and various others who are well known, are fighting a lot for the cause of keeping the environment clean. And we have many government servants who are honest and still work very hard to help Goa with all its problems. Now, keeping Goa clean and green is a very ongoing effort, a very everyday effort. मतलब हर रोज कुछ ना कुछ करना पड़ता है, हर आदमी को कुछ करना पड़ता है. ऐसा नहीं कि ऐसे ही स्टेट हमारा क्लीन और ग्रीन हो जाए. Okay, so the efforts are required on all the levels. If you look at this figure, individual efforts सबसे important है. मतलब जो हम हर एक जन कर सकते हैं अपने स्टेट को क्लीन रखने के लिए, इफ वी स्टार्ट विथ आवरसेल्व्स. उसके बाद आते हैं जो प्रोमिनेंट सिटीजन्स और ग्रुप्स है, एनजीओस है, गवर्नमेंट तो कुछ ना कुछ करेगा. लेकिन वो इफ यू कंपेयर अस टू अ ट्री, वी द इंडिविजुअल्स, द सिटीजन्स ऑफ द स्टेट आर द रूट्स ऑफ द ट्री. ओके, दूसरे सब कुछ जो है जो ऊपर दिखता है सबको, वो तो सब शो है ना. इट्स लाइक द लीव्स एंड द बार्क ऑफ द ट्री, द स्टेम ऑफ द ट्री is not as important as the roots of the tree. If the roots of the tree are not strong, तो जो भी whatever happens in the environment, it will destroy the tree. अगर roots strong है, तो nobody can destroy your state. So the roots are the citizens, the individual people in the state who do their everyday activities in a way to keep the state clean. Now, just to हम सोचते हैं नहीं कि हम एक ही जन है, मैं एक ही जन प्लास्टिक नहीं यूज करे तो क्या फर्क पड़ेगा किसकी. ओके, हम तो एक ही है. लेकिन देयर इज अ पोएम बाय एडवर्ड एवरेट हेल जिसने बोला है, आई एम ओनली वन बट स्टिल आई एम वन. फिर भी मैं एक हूँ. आई कैन नॉट डू एवरीथिंग, सब कुछ तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कुछ तो कर सकता हूँ. ओके, एंड बिकॉज आई कैन नॉट डू एवरीथिंग, आई शुड नॉट रिफ्यूज टू डू समथिंग विच आई कैन डू. ये बोल के कि हम सब कुछ नहीं कर सकते, उसका मतलब नहीं कि हम कुछ भी नहीं करें. हाँ, तो वो द पावर ऑफ वन हमको समझना चाहिए. एक छोटा सा 2 मिनट का वीडियो हम देखेंगे जस्ट ये स्टोरी के ऊपर. ओके, इंग्लिश में है लेकिन फिर आपको समझ में आएगा. वो स्टारफिश के ऊपर एक स्टोरी है. आप जरा बोल दीजिए मुझे अगर आपको सुनाई नहीं दे रहा तो. ये सुनाई दे रहा है सबको? जी मैडम. ठीक है. Yes. One day, a man was walking along the beach when he noticed a boy picking up starfish and throwing them into the ocean. Approaching the boy, he asked,
"Excuse me, but what are you doing?" The boy replied, "Throwing starfish back into the ocean. The sun is rising and the tide is going out. If I don't throw them back, they'll die." The man laughed to himself and said, "But there's too many starfish on this beach. You can't possibly make a difference." After listening politely, the boy bent down, picked up another starfish, and threw it into the ocean. Then turning to the man, he said, "I made a difference to that one." तो ये एकदम छोटा सा स्टोरी था जो था, अगर आपने ठीक से सुना है तो द इम्पोर्टेंस ऑफ वन, वो आदमी उसको बोल रहा है कि तुम क्यों इन स्टारफिश को निकाल के वापस दरिया में डाल रहे हो, तुमसे नहीं होगा ये करने को, ये बहुत सारे हैं बीच पे, तुमसे नहीं होगा। तो वो बोलता है जितने लोगों को भी हो जाता है वो स्टारफिश, जिन स्टारफिश को मैं फेंक सकता हूँ ओशन में, उनका तो लाइफ बच जाएगा। हाँ, तो हम एक ही हैं, लेकिन हम एक एक जन भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। So each person makes a difference, and we have to work towards a zero waste lifestyle, or how to make our lives more meaningful by reducing the amount of waste that we generate. So there are 4 main things that individual people can do, and both the speakers before me have also emphasized this point. The first is to reduce the amount of waste by not going on buying too many things. Consumerism, online है तो सब कुछ ऑर्डर करो, और पैकेजिंग ऐसे फेंक दो। नो, वी हैव टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ थिंग्स दैट वी बाय, द अमाउंट ऑफ थिंग्स दैट वी थ्रो अवे। एक दिन मोबाइल नहीं चल रहा है, चलो ठीक है वील बाय अनदर न्यू मोबाइल। ऐसा नहीं कि पिछले जो हमारा कल्चर था वो रिपेयर कल्चर था, मतलब अगर कुछ चल नहीं रहा है घर में तो दादाजी या जो भी हो सीनियर पर्सन वो बोलता था कि चलो हम उसको कुछ रिपेयर करके देते हैं, किसी को देते हैं, थोड़ा फिक्स कर लेगा, फिर वापस हम यूज करेंगे। आजकल का कल्चर ही ऐसा हो गया कि एक कुछ नहीं चल रहा है, दूसरा नया कुछ लेने का। सो वी हैव टू स्टॉप दिस कल्चर ऑफ थ्रोइंग थिंग्स अवे वेरी फास्ट। वी हैव टू ट्राई टू फिक्स वट एवर इज ब्रोकन, रीयूज वट एवर इज पॉसिबल, रिसाइकल और अपसाइकल। अपसाइकल मतलब छोटे छोटे जो चीजें हैं घर में ही मिलते हैं, बॉटल्स के जैसे और सब, उनको सुंदर बना के ऐसे सजावट के जैसे भी एफर्ट्स कर सकते हैं हम। ओके, द सेकंड थिंग इज टू सेग्रीगेट एट सोर्स, वेस्ट सेग्रीगेशन। अनसेग्रीगेटेड वेस्ट, जो जिस वेस्ट को हम सेपरेट नहीं करते हैं, प्लास्टिक, और उसमें थोड़ा जैसे हम ऑर्डर करते हैं होटल से, प्लास्टिक डब्बा में आ जाता है कुछ खाना, कोई लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं उसमें से बिना धो के डस्टबिन में डालते हैं। अभी डस्टबिन में डाला और आपने सोचा, सॉरी somebody is putting a message, सुनाई तो दे रहा ना? हाँ, ओके। अगर आपने डस्टबिन में डाला बिना धो के तो वो रिसाइकल मशीन में जाके वो मशीन ही बंद हो जाएगा। खाना उसमें हो तो वो रिसाइकल नहीं हो जाएगा। तो सेग्रीगेशन सोच पे ही होना चाहिए, धोना भी चाहिए। मिल्क पैकेट जो है, जो भी कुछ है, धो के फेंकना चाहिए। पेपर प्लेट में खाए, धो के फेंकना चाहिए, क्योंकि मिक्स्ड वेस्ट, जो वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट है, अगर मिक्स हो तो वो रिसाइकल हो ही नहीं सकता है। ओके, थर्डली, ग्रीन योर ओन स्पेस, मतलब जिस जगह में आप रहते हो एटलीस्ट उस जगह को, अपने घर को, अपने गार्डन को, अपने कंपाउंड को, अपनी बिल्डिंग को, अपने नेबरहुड को थोड़ा मेहनत करके उसको ज्यादा ग्रीन बनाओ। जितना भी ग्रीन बनाओगे, रास्ते होंगे, एयर पोल्यूशन होंगे, वो सब कार्बन डाइऑक्साइड एटलीस्ट वो झाड़ों को करना चाहिए, जिससे हम वेस्ट को लेस कर सकते हैं। जैसे कि हम सब्जी वाले के पास जाए तो मैं हमेशा सब्जी वाले को बोलती हूँ कि क्यों आप प्लास्टिक दे रहे हो लोगों को। बोलता है कि अरे मैडम, हम प्लास्टिक नहीं देंगे तो भाजी नहीं लेंगे। और हमारे घरों में जो हम करते हैं ना, जैसे कि रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज। और धन्यवाद, और बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए कि इतना अच्छा प्रोग्राम, कार्यक्रम आपने आयोजित कराया। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो और झारखंड सरकार और गोवा सरकार, भारत की केंद्र सरकार जिसके प्रतिनिधि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो और उनके एडीजी श्री हरिमर्दन जी,
तो ये सभी आप लोगों ने इतना एक ज्ञान की गंगा का प्रवाह इस डिजिटल माध्यम से आपने प्रस्तुत किया, जो बहुत ही जिसे कहा जाए कि स्वयं में पवित्र करने वाला है। यह संपूर्ण ज्ञान पवित्र करने वाला है, जिसे क्लीन कहते हैं आप, हैं क्लीननेस। आपने कहा था कि मुझे ये कहना है कि भारतीय संस्कृति में एक स्वच्छता जो है वह नैसर्गिक है। नैसर्गिक मतलब अंतर्निहित है। भारतीय संस्कृति की आत्मा स्वच्छता से संश्लिष्ट है। संश्लिष्ट माने जुड़ी हुई है। इस बात को आज बहुत अधिक समझने की जरूरत है। हमारे पहले के जो बहुत ही विद्वान और बहुत ही योग्य लोगों ने जो बातें रखी, परमादरणीय वाइस प्रिंसिपल साहब ने सेंट जेवियर कॉलेज के बहुत अच्छी बातें रखी स्पिरिचुअलिज्म के बारे में और सोशल बीइंग के बारे में। सुकरात को कोट करके जो बातें कही, वो सब बातें आज बहुत ही गंभीरता से, जिसे कहा जाए कि पुनर्चिंतन और पुनर्जागरण की जरूरत है। और इसी तरह से गोवा से बहन रॉड्रिक्स ने जिस तरह से बहुत बड़ी सब योजना बताया, गोवा के संदर्भ में प्रस्तुत किया, और पूरे उनके होम साइंस के जो उनके कॉलेज है और एक जो अवेयरनेस है, और बहुत डिटेल में उन्होंने बताया, वो भी एक बड़ा ही पवित्र करने वाला या क्लीन करने वाला ज्ञान दिया उन्होंने। खुद ही ज्ञान जैसे पवित्र करेगा। और फिर कंप्यूटर के भाई ने, संतोष जी ने जिस तरह से डिजिटाइजेशन के बारे में जो बातें प्रकाशित किया, वो बहुत ही, जिसे कहा जाए कि एक, जिसे हम लोग कहते हैं पैराडाइम शिफ्ट। पैराडाइम शिफ्ट का मतलब होता है कि एक पूरे चिंतन में, एक दर्शन में, एक अवधारणात्मक औजार में एक व्यापक परिवर्तन हो। शिक्षा के जगत में एक बहुत बड़ा, एक जिसे कहा जाए कि परिवर्तन हो, इस अर्थ में परिवर्तन हो कि दूर दूर बैठे हुए लोग भी शिक्षित हो सकते हैं। और मैं सोचता हूं कि भारत सरकार और हमारे परमादरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और जो भी विजनरी हैं, वो लोग इसके लिए बड़े धन्यवाद के पात्र हैं कि उन लोगों ने 2015 में ही इस बात को सोचा, जैसा कि संतोष जी ने बताया, एक डिजिटाइजेशन या डिजिटल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इन सब के लिए जो प्रयास किया गया, उसका बड़ा भारी प्रयोग इस कोविड काल में हम लोगों ने देखा। हम लोग विश्वविद्यालयों में, खासतौर से काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, जहां पर भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों के विद्यार्थी, इंजीनियरिंग से लेकर मेडिकल साइंसेस तक सभी डिसिप्लिन के बच्चे पढ़ते हैं, तो इसमें बहुत दूर दूर तक के बच्चे नहीं आ सकते थे। तो इस ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से किस तरह से ये बहुत बड़ी बात हुई। जो प्रिपरेशन था, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, भारत सरकार ने जो एक डिजिटाइजेशन की के जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए, जैसा भाई संतोष जी ने बताया कि कैसे अभी हम लोगों को और अभी इसमें इंटरनेट के, ब्रॉडबैंड की, इन सब सुविधाओं को और अधिक करने की जरूरत है। लेकिन मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं कि जिस तरह से हम लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बहुत सी कई राज्यों के, झारखंड के विद्यार्थी, मध्य प्रदेश के विद्यार्थी और इवन कर्नाटका से, गोवा से, असम से, जम्मू कश्मीर के विद्यार्थी, मैंने किसी भी राज्य का नाम लिया जाए, वहां सब के विद्यार्थी जो हम लोगों से जुड़ करके, और हम लोग अपने घरों में रह करके उन्होंने से बातचीत किए, उनका कोर्स चलाए और ऑनलाइन एग्जाम वगैरह लिए। तो ये एक बहुत बड़े, कहा जाए कि एक युगांतरकारी बातें थी। युगांतर, जैसे युग परिवर्तन, शिक्षा के जगत का युग परिवर्तन। अब जैसे ये बात कहेंगे तो लोग कई बार कहेंगे कि ये कपोल कल्पना की बात हो सकती है, लेकिन एक समय में लोग बहुत ही अपने आध्यात्मिक शक्ति से दूर बैठे हुए लोगों को
अपने विचारों का संप्रेषण करते थे। आज भी ऐसे लोग हैं उस क्षेत्र के दूर दूर बैठे हुए लोगों को एक वैचारिक संप्रेषण करते हैं। अब ये अपने आप में वैज्ञानिक लोग कहेंगे भाई ये पता नहीं कैसा है कि नहीं है, लेकिन वो जो चीज जो कहानियों में थी, जो सपने में थी, जो गाथाओं में थी, जो कथाओं में थी, जो पुराणों में थी, वो सब बातें हमारे यहाँ डिजिटल इंडिया के माध्यम से भारतवर्ष में ये सब चीजें उपस्थित हुई, पूरे विश्व में उपस्थित हुई। और इन्हीं के साथ जो एक जो हम लोग वेस्ट की जिसे जो वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये सब करके बड़ी डिसिप्लिन वगैरह यूनिवर्सिटीज वगैरह में भी सब डेवलप हुई, डिफरेंट ब्रांच के लोगों ने डेवलप किया। और हमारे यहाँ तो बनारस में गंगा जी और गंगा जी को लेकर के कैसे उनके जैसे पोल्यूशन को दूर करने के संदर्भ में बहुत से जो प्रयास किए गए। और खासतौर से मैं देखता हूँ कि 1986 ऑनवर्ड्स, 1986 के बाद से ही एक भगीरथ, जैसे भगीरथ ने गंगा जी को पृथ्वी पर अवतरण किया अपने तपस्या से, वैसे भगीरथ प्रयास करके गंगा जी को कैसे शुद्ध किया जाए। और गंगा जी में जो तमाम कचरा और तमाम वेस्ट जो है वो बिना मतलब माइंडलेस वे में फेंका जा रहा था, उन सब के बारे में बहुत से एक जागृति, एक अवेयरनेस का भाव हम देखते हैं आया। लेकिन ये अवेयरनेस बहुत तेजी के साथ लागू होने में बहुत समय भी लगा। तो जैसे ऐसे ही काशी में देखते हैं कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जिसे कहते हैं, एसटीपी वगैरह कहते हैं, ये सब बहुत से एसटीपी हमारे यहाँ बने हैं और बहुत बनाए जा रहे हैं। और मैं तो ये बात कहने में ये नहीं कि मैं कोई बहुत व्यक्तिगत तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि 1914 के 2014 के बाद से जो एक बड़ा भारी पैराडाइम शिफ्ट आप देखते हैं प्रशासन के मामले में, शासन के मामले में और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ थिंग्स के मामले में, ये हम देखते हैं। और उसका एक प्रतिबिंब काशी में जो हम देखते हैं, और कोई काशी में पहले गया हो और इधर भी जाकर के देखे तो व्यक्तिगत रूप से जिस तरह से प्रधानमंत्री खुद ही अपने हाथ में झाड़ू लेकर के और गंगा के किनारे घाटों की सफाई और ये सब का कार्यक्रम उन्होंने किया, और एक जैसे अभियान चलाने का। अब मैं इसी समय का अवसर लेकर के कहना चाहता हूँ और याद दिलाना भी चाहता हूँ, और लोग जानते भी होंगे कि कैसे काशी में जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय की 1916 में स्थापना हो रही थी, तो उस समय पंडित मदन मोहन मालवीय जिसके संस्थापक थे, बहुत से लोगों को पूरे भारतवर्ष से आहूत किए थे। आपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय का अगर आप जिसे कहते हैं गूगल अर्थ पर आप मैप देखिएगा, बड़ा हरियाली का क्षेत्र है, पूरी हरियाली एकदम बची हुई है, और ये करीब 1350 एकड़ की जमीन में बना हुआ विश्वविद्यालय है। तो मैं जो मुख्य बात कर रहा था वो ये कि गांधी जी उसमें आए हुए थे, और गांधी जी ने उस समय बहुत सी बातें कही जिनको कहने का अवसर कभी और होगा। लेकिन एक बात बनारस के बारे में वो ये बात कह के थोड़ा दुख भी व्यक्त किए कि बनारस की गलियां बड़ी गंदी और बड़ा ये पवित्र शहर है, लेकिन गंदगी बहुत है। तो ये जो एक बनारस, एक हम बनारस के संदर्भ में कि बनारस जो कि पूरे भारतवर्ष के एक श्रद्धा की जो नगरी है, और भी कई नगरियां हैं जैसे कि आपके गया है और भी तमाम जगहों पर, मथुरा है, प्रयाग है, और दक्षिण भारत में भी बहुत सी नगरी हैं, कन्याकुमारी है और तमाम स्थान है। पूरे भारतवर्ष के जो धार्मिक स्थल है उनमें काशी का एक बड़ा महत्व है, और वहां पर कैसे पवित्रता और कैसे सफाई और ये सब चीज हो, तो इसको जो एक व्यक्तिगत रूप से स्वयं हाथ लगा करके हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कार्यक्रम शुरू किया, तो मैं काशी को खुद अपने एक अनुभव से, जैसे होता है कि एक बच्चा और एक युवा होकर के देखे, तो मैं 1970 से काशी को 1970 से एक सजग रूप से देख रहा हूँ, या उसके पहले से भी मैं कह सकता हूँ 1968 वगैरह से। तो एक बड़ा भारी परिवर्तन एक हुआ, जिसके बारे में हमारे कई वक्ताओं ने, जैसे बहन रॉड्रिक्स ने भी कहा कि कैसे अकेला व्यक्ति भी अगर कोई तय करे कि नहीं हमें साफ करना है, हमें ठीक से रहना है, तो वो कर सकता है इस बात को अकेला। कई बार ये होता है कि लोग समय के पैदावार है कोई व्यक्ति, जैसे इतिहास में हम लोग कहते हैं कि यह व्यक्ति इस समय के परिस्थितियों से उत्पन्न हुआ, और कई बार ये भी कहा जाता है कि
यह व्यक्ति परिस्थितियों को पैदा किया, व्यक्ति ने परिस्थितियों का निर्माण करके एक नए युग का आगाज किया, एक नए युग का परिवर्तन किया। तो इस अर्थ में अगर आप देखें कि महापुरुषों की भूमिका के बारे में अगर आप चर्चा करेंगे तो आप कह सकते हैं कि महापुरुष किसी खास कालखंड की परिस्थितियों के परिणाम है, लेकिन आप ये भी अगर कहना चाहें तो कह सकते हैं कि कोई महापुरुष उन परिस्थितियों का निर्माण करता है। और इस अर्थ में बहुत अधिक मैं तारीफ करने के अर्थ में नहीं कह रहा हूं, एक यथार्थ बात कर रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से एक व्यक्तिगत स्तर पर जो प्रयास किया और एक बड़ा ही सर्वांगीण ढंग से जो प्रयास किया, आज अगर स्वच्छ भारत के संदर्भ में या स्वच्छ विश्व के संदर्भ में अगर सोचना होगा तो हम लोगों को अपने बहुत ही पुरानी जो हमारे जो दृष्टिकोण है, जो हमारी जो मान्यताएं हैं, उन सबको भी हम लोगों को अपने मन में ध्यान रखना पड़ेगा। और पुराने दृष्टिकोण में कैसे सफाई के बारे में क्या चर्चा है, सफाई या स्वच्छता या पवित्रता, पवित्र शब्द भी जो हमारे यहाँ प्रयोग किया जाता है, पवित्र, स्वच्छ, सफाई है, क्लीन, ये सब क्या है, इन सब का अर्थ और कैसे ये कहां से आ रहे हैं ये। तो इस अवसर पर जबकि बहुत से वैज्ञानिक बातों को हमारे पूर्व विद्वान और विदुषी वक्ताओं ने दिया वक्तव्य, मैं इस संदर्भ में आज के दिन ये आग्रह करना चाहूंगा और ये जो एक स्वच्छता का जो अभियान चलाया जा रहा है उस संदर्भ में ये बात बहुत ध्यान देने योग्य है कि स्वच्छता के बारे में हमारे पुराने जो हमारे धर्म ग्रंथ है, हमारे जो साहित्य है, वो क्या कह रहे हैं और कैसे किसे स्वच्छ कहा जाए, कौन स्वच्छ है, ये विचार करने की बात है। तो स्वच्छता के संदर्भ में बहुत विनम्रता से ये कहना चाहेंगे कि कैसे एक जो अंदर की चेतना है व्यक्ति की, उस चेतना के बारे में लोग कहते हैं कि वो कैसे पवित्र चेतना, और अगर चेतना पवित्र होगी तो उस पवित्र चेतना से किए गए कार्य भी पवित्र होंगे। यहाँ पवित्र मतलब स्वच्छ, और पवित्र कैसे कोई पवित्र होगा, इस पर श्री कृष्ण ने गीता शास्त्र में जो बात कहा है वो मैं निवेदन करना चाहूंगा। बहुत ही बड़ी मौलिक बात कहा उन्होंने, कहा कि नहीं ज्ञानेन सदृशम इहलोके पवित्रम इहलोके, नहीं ज्ञानम सदृशम पवित्रम इहलोके विद्यते। ज्ञान के समान इस लोक में, इस लोक संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं। और ये ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, तो उन्होंने कहा कि ये योग के माध्यम से कुछ काल में अपनी अंतरात्मा में स्वयं ज्ञान प्रकट होता है। ये स्वयं ज्ञान अपनी अंतरात्मा में प्रकट होता है और इस ज्ञान के अलावा पवित्र करने वाला इस संसार में कुछ नहीं। और ज्ञान क्या है? ज्ञान यही है कि जैसे ज्ञान यही है कि यह संसार जो है वह नश्वर है और नश्वर संसार में कुछ बचता नहीं है। सभी वस्तुएं एक शून्य से निकल करके शून्य में प्रवेश कर रही हैं, नष्ट हो रही हैं। और इस नष्ट प्राय संसार के मध्य किसी एक तत्व के बारे में चर्चा करते हैं लोग, जिसके कई नाम हैं उस तत्व के। किन्हीं सभ्यताओं में उन्हें ब्रह्म कहा गया, किन्हीं सभ्यताओं में ईश्वर का नाम दिया गया, किन्हीं सभ्यताओं में गॉड कह दीजिए, किन्हीं सभ्यताओं में अल्लाह कहा गया। विभिन्न सभ्यताओं में जो ये शब्द के माध्यम से एक इशारा किया गया कि इस नश्वर संसार के मध्य में एक सत्य है, उस सत्य के साथ जुड़ने से पवित्रता प्राप्त होती है। और पवित्रता जो है वही स्वच्छता, स्व माने ब्रह्म, स्व माने अहम होता है, लेकिन अहम से भी अंदर जो है ब्रह्म, ब्रह्म अर्थात प्योर कॉन्शियसनेस या प्योर चेतना। जब प्योर चेतना होगी तो उससे एक स्वच्छ वातावरण तैयार होगा। और इसके बारे में मैं बहुत संक्षेप में बातों को कहूंगा कि कैसे हमारे यहाँ काशी में मैं दो लोगों का नाम लेना चाहूंगा। जैसे हमारे यहाँ कबीर दास थे, कबीर दास ने संसार के बारे में जो कहा, कुछ उस बात को बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए कि दास कबीर जतन से ओढ़ी, जस की तस रख दीनी चदरिया, झीनी 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 दीनी रे चदरिया। इसका अर्थ
गंभीरता से सब लोग ध्यान दे करके धीरे धीरे समझेंगे कि कैसे ये पूरा जो जगत है, वो जगत हमें जो प्राप्त है उसको हम कैसे लीस्ट कम से कम यूज करके इससे कम से कम गंदा करें। दास कबीर ऐसे जतन से अपना जीवन चलाएं कि ये संसार को जैसे जैसे ये संसार स्वच्छ मुझे प्राप्त हुआ है, मैं संसार को स्वच्छ छोड़ करके जाऊं। और इसी तरह से एक दूसरे व्यक्ति का जो बहुत ही महान काशी में, उनका भी पूरे अखिल भारतीय स्तर पर उनको लोग बहुत सम्मान के दृष्टिकोण से देखते हैं, वो रविदास उनका नाम है, रविदास। और रविदास जी ने कहा कि मन चंगा तो कठवत में गंगा। मतलब अगर आपका मन चंगा है, अब इसका अर्थ जो है लोग सोचे, मन चंगा का अर्थ यही है कि आप व्यक्ति के मन में जो कलुष है, तो काम क्रोध मद लोभ मत्सर जो कलुष है, जिसे एक शब्दों में कह दीजिए एक भोगवाद के प्रति एक जिसे कहा जाए कि न तृप्त हो जाने वाली एक आकांक्षा, जो न तृप्त हो जाने वाली जो आकांक्षा है, जो न मिटे ऐसी इच्छाओं का जो अंबार है, जो आजकल के मनुष्य के मन में यह है। इस इच्छाओं के अनंत अंबार के चलते एक खुद मनुष्य स्वयं में दूषित है, और दूषित होकर के वो एक खास ढंग से प्रदूषण का प्रचार व प्रसार करने में लगा हुआ है, स्वयं प्रदूषित है और प्रदूषण के वातावरण को तैयार कर रहा है। और ऐसे ही संदर्भ में हम लोगों को बहुत जरूरी है ये बात जरा ध्यान देने के लिए, जब भी स्वच्छता की बात को ध्यान दें तो ये भी जरूर सोचें कि गांधी जी कैसे स्वच्छता से प्रभावित हुए होंगे, कि स्वच्छता को उन्होंने अपने जीवन का बहुत बड़ा उद्देश्य बनाया, या नरेंद्र मोदी जी ने भी स्वच्छता को बड़ा भारी उद्देश्य बनाया, एक स्वच्छता अभियान पूरे भारतवर्ष में चलाया। तो ये बात जो मैं तीसरी बात कहना चाहूंगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कालक्रम खंड से इन्हें पहले कहना चाहिए, वो गौतम बुद्ध को मैं याद करना चाहूंगा कि गौतम बुद्ध ने इसी काशी में ही जो शिक्षा दिया, तो उनका शिक्षा था कि संसार में दुख है, दुख का कारण है, दुख को दूर किया जा सकता है, और दुख को दूर करने का उपाय है। और उपाय में जो बातें उन्होंने कहा, वो उपाय दुख को दूर करने के उपाय में उन्होंने इच्छाहीनता को, अब कोई कहेगा इच्छाहीनता कैसे आएगी, ये एक अभ्यास की चीज है कि कम से कम में हम कैसे अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हो। इस पैराडाइम को, इस विश्व दृष्टिकोण को, इस प्रायोरिटी को जीवन में उतारना पड़ेगा। ये शिक्षा के माध्यम से, बचपन से शिक्षा के माध्यम से एक संस्कार जनित ये माध्यम होना चाहिए, होना पड़ेगा, इसका संकल्प लेना पड़ेगा। गांधी एक लाठी और एक धोती, एक साधारण सा जीवन जीते हुए किस तरह से वो अपना पूरा का पूरा जीवन एक निर्भयता के साथ, निर्भयता और अहिंसा के साथ उन्होंने पास किया। कि निर्भयता ये थी, उनके मन में निर्भयता क्यों थी, गांधी के मन में निर्भयता कहाँ से आई? निर्भयता ये थी कि हम ईश्वर से, कहीं कोई चीज ऐसी है ही नहीं जो ईश्वर से दूर हो, ये उनकी अपनी आस्था थी। तो इसलिए वो जो ईश्वरत्व का जो भाव था, वो एक बहुत ही साधारण जीवन जीने में भी आप अपने को एक शक्तिमान भी अनुभव कर सकते हैं, संतुष्ट अनुभव कर सकते हैं, स्वच्छ अनुभव कर सकते हैं, और सबसे अधिक आनंदित अनुभव कर सकते हैं। तो ये जो एक भाव कि कैसे हम आज, अगर हम स्वच्छता की बात कर रहे हैं, हम जब वेस्ट की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की बात कर रहे हैं, या और भी तमाम केमिकल्स के वेस्टेज की बात कर रहे हैं, तो ये बात उठाने की जरूरत है कि ये वेस्टेज इतनी बड़ी संख्या में जो होता चला जा रहा है, जिसे किस प्रकार, जिसे एक्सपोनेंशियल किस गति से बढ़ता चला जा रहा है, पूरे विश्व में इस पर बहुत चर्चा हो रही है। लोग कह रहे हैं कि पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, बहुत दिक्कतें आ जाएंगी, ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे। लेकिन ये सभी बातें कैसे टैकल किया जाए, कैसे सॉल्व किया जाए, और ये सॉल्व करने के लिए भारत की तरफ भी लोग देख भी रहे हैं और भारत ने कुछ जवाब भी दिया। जैसे हम देखते हैं कि हमारे नरेंद्र मोदी जी ने ही पूरे विश्व स्तर पर योग वगैरह को जिस तरह से प्रचारित किया, व्यायाम वगैरह को प्रचारित किया, आसन का प्रचार किया, किस तरह से निरोगित जीवन, एक बहुत ही कम से कम प्रकृति का दोहन करके
कैसे निरोगित और स्वच्छ जीवन जिया जा सके, ये भारतीय जीवन पद्धति और भी तमाम जो धर्म समूह है, तमाम जो सभ्यताएं हैं, जो प्राचीन सभ्यताएं हैं, वो सभी सभ्यताओं का अगर बहुत अंदर से अध्ययन करेंगे तो सभी सभ्यताएं एक बड़े ही सादगीपूर्ण जीवन को अनुमोदित करती है। और अगर सादगीपूर्ण जीवन का अनुमोदन स्वीकार किया जाए, संस्कारगत ढंग से स्वीकार किया जाए, तो ये खास किस्म का जो एक भौतिकवाद की तरफ जो बहुत तेजी के साथ पूरी पृथ्वी बढ़ती जा रही, जिसे हम लोगों ने थर्मोडायनामिक्स में एंट्रोपी, एक होता है एंट्रोपिक डेल्टा टी कहते हैं, कैसे ये एक डिस्टरबेंस पूरे यूनिवर्स में एंट्रोपी, एक डिस्टरबेंस बढ़ता जा रहा है, वो डिस्टरबेंस का अंत एक विस्फोट के रूप में हो और पूरी पृथ्वी जो है वो अभी आज तो नहीं, लेकिन एक समय में मान लीजिए कि जिसे ब्लैक होल वगैरह कहते हैं, उस तरह की तरफ बढ़ता चला जाए। वो सब बहुत आगे का समय है, लेकिन अभी वर्तमान समय में ही, अभी 50 या 100 वर्ष के समय के आगे के समय पर विचार करने पर ये बात बड़ी महत्वपूर्ण ढंग से ध्यान देने की योग्य है कि कैसे हम अपने जीवन का जो दृष्टिकोण है, जो पैराडाइम है, जो हमारा सोचने का तरीका है, जो हमारे सोचने के अवधारणात्मक ढांचा है, उनमें कैसे बदलाव करके किस तरह से, जैसे हमारे आनंद की जो परिभाषा है, आनंद की परिभाषा हमारे यहाँ गीता शास्त्र में कहा गया है कि जो ईश्वर में उन्मुख है, ईश्वर में उन्मुख है, जो ईश्वर में समर्पित है, वो प्रसन्न है। कहा गीता में कि प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठत्। जो प्रसन्न है वो ईश्वर में निवास कर रहे हैं, और जो ईश्वर में निवास कर रहे हैं वो प्रसन्न है, और ईश्वर में निवास वही करेगा जो गीता शास्त्र में कहा कि विहाय कामान्य सर्वान पुमांस चरित निष्पृह निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। शांति कौन प्राप्त करता है? शांति ही स्वच्छता का सबसे बड़ा आधार है। शांति है, भगवान ने कहा कि जो निरहंकार है, निरहंकार, जिसमें कोई अहंकार नहीं, सभी कामनाओं को छोड़ दिया, कोई कामना नहीं। कामना का मतलब कि बहुत सी, आज हम ये लेंगे, आज हम वो पा जाएंगे, अब आज हम ये करेंगे। आप देखें कि कामनाओं का विस्फोट से हर व्यक्ति ग्रस्त है। इस कामना के विस्फोट के ग्रस्त से कैसे कम किया जा सके, तो भगवान ने कहा कि जो कामनाओं को छोड़ करके, अहंकार शून्य होकर के, इच्छाहीन होकर के, अपने अंदर जो उसका अस्तित्व है, उसके बाद जो उसका अस्तित्व है, उस अस्तित्व का नामकरण ही आनंद है। आनंद क्या है? आनंद है इच्छाहीन होकर के, अहंकार शून्य होकर के, जब व्यक्ति अपनी चेतना में निवास करता है, तो वही चेतना उसकी स्वच्छ, शुद्ध, प्योर कॉन्शियसनेस है। और उस प्योर कॉन्शियसनेस में रहने वाला व्यक्ति वातावरण के प्रदूषण में सहयोगी नहीं होगा, और वो एक ऐसा व्यक्ति होगा जो एक विकिरण दे सकता है, एक प्रकार का, एक उससे रेज होंगी उत्पन्न कि वातावरण में स्वच्छता का एक वातावरण बने। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने सभी वक्ताओं को, पूर्व वक्ताओं को, विद्वत वक्ताओं को, विदुषी वक्ता को धन्यवाद देता हूं, और अपने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, भारत सरकार और झारखंड सरकार, गोवा सरकार की, कितना बड़ा आप लोगों ने प्रोग्राम आयोजित किया, इतना अच्छा। शाहिद साहब को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सब जोड़ा, सब लोगों को एकदम जोड़ दिया आपने, और ये बहुत ही धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः धन्यवाद, और ये संकल्प घोषित करते हैं कि स्वच्छता के साथ रहना है तो हमें अपनी पवित्र चेतना के साथ रहना पड़ेगा। धन्यवाद।